अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं उर्दू के आशिया पेश करना चाहती हूँ। सब ज़ुबान की जान है उर्दू, कितनी प्यारी ज़ुबान है उर्दू। सारे अल्फाज़ कीमती जौहर, जौहरी की दुकान है उर्दू। वल्लाह क्या ज़ुबान है उर्दू। हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, दो जिस्म एक जान है उर्दू। सो डाइट रामनगर, टुमकुर, मधुगिरी एंड और सीडब्ल्यूसी के जानिब से ये 3 जिलों के जो उर्दू असातिज़ा के लिए हौसला हौसला अफ़ज़ाई बज़्म एक्सप्लोरिंग लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ अराउंड मी आज का आज का जो ये प्रोग्राम है, इसमें ये पानी के ये ज़रूरी हमारे असातिज़ा को बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पानी के बिना पौधा मुरझा जाता है, ऐसे ही आज की असातिज़ा की स्ट्रेसफुल लाइफ में ऐसे बहुत हौसला अफ़ज़ाई मतलब मोटिवेशनल स्पीच जैसा कि हर एक काम में पॉज़िटिव पुश ज़रूरी होता है। इसके लिए रामनगर, टुमकुर और मदुरई जिलों के ये असातिज़ा बहुत खुशकिस्मत है कि हर साल ये मोटिवेशनल स्पीच उनको दिया जाता है। ऐसे ही जो लास्ट ईयर भी दिया गया था और इस साल भी आज स्टार्ट हुआ है। सो ऐसे ऐसे ही आज हमारे साथ आज के मेहमान खुसूसी मुहर्रम डॉक्टर मोहम्मद नसरुल्लाह खान साहब का इस सेशन में 3 डायट यानी रामनगर, टुमकुर और मधुगिरी डायट और सीडब्ल्यूसी के जानिब से मैं सर को इस्तकबाल करती हूँ। और इस प्रोग्राम में जुड़े हुए अ, मोहतरम जनाब प्रभुस्वामी सर, बीजे, प्रिंसिपल, डायट रामनगर, इनको भी मैं इस बज़्म में इस्तकबाल करती हूँ। और और एक डायट के प्रिंसिपल, टुमकुर डायट के प्रिंसिपल, जनाब मंजुनाथ सर, उनको भी मैं इस प्रोग्राम को इस्तकबाल करती हूँ। और जनाब गंगाधर सर, प्रिंसिपल डायट मधुगिरी, सो उनको भी ये प्रोग्राम मोटिवेशनल प्रोग्राम के लिए इस्तकबाल करती हूँ। और सीडब्ल्यूसी टीम के पूरे भी जो मेंबर्स हैं उनको भी ये प्रोग्राम के लिए इस्तकबाल करती हूँ। और 3 जिलों के जो उर्दू ईसीओस हैं उनको भी ये प्रोग्राम के लिए इस्तकबाल करती हूँ। और 3 जिलों के जो सीआरपीस हैं उनको भी ये प्रोग्राम के लिए इस्तकबाल करती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे 3 जिलों रामनगर, टुमकुर और मधुगिरी के जो असातिज़ा है, उनको मैं ये प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। इस्तकबाल करते हुए मेरा ये चंद बातें खत्म करती हूँ। और इसमें डायट रामनगर के प्रिंसिपल जो ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ हैं ಡಯಟ್ ರಾಮನಗರಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆ, ಮಧುಗಿರಿ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ.
ಕಾರಣ ಈ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಟೀಚೋಪಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ ಅನ್ನ ಸೃಜಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷು ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತುಮಕೂರು ಡಯಟ್, ಮಧುಗಿರಿ ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹಂತದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇಸಿಒಗಳು, ಸಿಆರ್ಪಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಘುವೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಪಿಯ ಅಸ್ಮಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪುಗೊಳ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ CWSC ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸ್ತರದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 17/9 ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇಸಿಒಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟೀಚೋಪಿಯ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಟೀಚೋಪಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಆಶಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಈ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ನ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನ BO, BRC ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿ ಆ ಆಪ್ ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಟೀಚೋಪಿಯಾದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಏನು ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಉರ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಶಯ ಈಡೇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ CWC ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಸ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಲವರ್ಧನಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಝೂಮ್ ಸಭೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾನೆ. ಸಭೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ CWC ತಂಡ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟೀಚೋಪಿಯಾ ಆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಕೆಲವು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तबरेज़ आप तमाम असातिज़ा और मेहमान खुसूसी का तुमको रामनगर, मधुगिरी और केरीमीत कलर की जानिब से सेशन में इस्तकबाल करता हूँ। असातिज़ा किराम, आज के इस मोटिवेशन सेशन का मौजू है मेरे इर्द गिर्द आमोजिश तलाश करना, यानी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अराउंड मी।
जिसे आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद नसरुल्लाह खान पेश करेंगे। आप तमाम से आजिज़ाना इल्तिमास है कि आप इस सेशन में आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि इस तरह की शख्सियत को सुनना बहुत कम मैसर होता है। असातिज़ा किराम, आज के मेहमान खुसूसी एक अजीम शख्सियत है और एक अच्छे इंसान भी। आपने अपने इल्म से कर्नाटक के कोने कोने में इल्म का चिराग रोशन किया है। मैं खुद आपका शागिर्द हूँ और सेशन में जुड़े कई असातिज़ा भी आपके शागिर्द और शागिर्दा रह चुके हैं। डॉक्टर नसरुल्लाह खान साहब, आपने उर्दू एमए कुवेम्पू यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट से पास किया और 2013 में कुवेम्पू यूनिवर्सिटी से शेरी मुकालिमा निगारी की रिवायत के मौजू पर पीएचडी की। आपने नक़्द तहक़ीक़, उर्दू क़वायद व बलागत, प्रोफेसर सैयद खलील अहमद की शख्सियत और खिदमत, आईनाए अक्स, प्रोफेसर शेख अली हयात और उनकी खिदमत, शम्स फरोज़ा और वगैरह पर आपने किताबें लिखी। डॉक्टर साहब ने 500 से ज़्यादा आर्टिकल लिख चुके हैं, जो उर्दू के कई अखबारात में शाये हो चुके हैं। आप कुवेम्पू यूनिवर्सिटी शिवमोगा में 18 साल खिदमत अंजाम दिए हैं और 2021 से कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसरुल्लाह खान साहब, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से कई कौमी और बैनुल अक़वामी मुशायरे भी कंडक्ट कर चुके हैं और आपने केएसओ कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें भी आपने अहम किरदार अदा किए हैं। आप अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शिमोगा के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और इसमें शिमोगा में कई सेमिनार, वर्कशॉप और एक्सटेंशन डिबेट, एसे कंपटीशन, मुशायरा वगैरह भी आपने कंडक्ट चुके हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि आखिर तक जुड़े रहें और मैं आप ज्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए माइक को डॉक्टर साहब के हवाले करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आज का जो ये मौका है ये मेरे लिए इसमें शमूलियत बाइस फ़ख्र है, इसलिए नहीं कि एक प्रोग्राम है, एक ऑनलाइन का प्रोग्राम है, मगर जिनसे मुखातिब होने का मौका मिला है वो बड़ी हस्तियां हैं। उस्ताद का पेशा यकीनन एक मुअज़्ज़िज़ व मोतबर पेशा होता है। दरअसल ये पेशा जो है अंबिया अलैहिस्सलाम का पेशा है, लिहाजा ये मौका इनायत करने पर मेरा इस्तकबाल करने के लिए सैयद तबरेज़ अहमद साहब का ये जो आपकी जो टीम है CWC जो है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। और साथ ही हमारे रामनगर, तुमकुर और मधुगिरी के जो TDP साहिबान हैं और उसके साथ जो है जो स्टाफ है, ECO हैं, CRP हैं, आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन DJ प्रभु स्वामी सर जो अभी बात किए हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ जो इब्तिदाई कलिमात पेश किए अस्मा तबस्सुम साहिबा का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और साथ ही हमारे मल्लेश साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम इंतजामात यकीनन काबिल तारीफ़ है। आप तमाम की शमूलियत और मुझे बात करने का मौका मिला, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने मौजू पर आऊँगा। देखिए, मेरे इर्द गिर्द आमोजिश के मौके तलाश करना। सबसे पहले, तेरा जमाल अगर ख्वाब में भी तू देखे, तेरा जमाल अगर ख्वाब में भी तू देखे, हजार होश से खुशतर तेरी शुक्र ख्वाबी। इंसान कोई भी हो,
सबसे पहले उसे ये मालूम होना चाहिए कि वो क्या है, उसकी पहचान, मैं क्या हूं और दुनिया में मुझे किस लिए भेजा गया है। अगर ये पहचान अगर हमें ख्वाब में भी हो गया तो समझ लीजिए कि वो ख्वाब हमारी जिंदगी से ज्यादा अफजल होगा, इसलिए कि उसमें हमने अपनी हकीकत देखी है। ये है उर्दू शायरी की लचक, उर्दू जबान की धनक और हमारी और आपकी इस जबान से जुड़ी हुई मोहब्बतें हैं, और आप तमाम असातिज़ा किराम जो हैं इससे जुड़े हैं। मैं फिर एक बार आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। देखिए, ये मौका है, बड़ा सुनहरा मौका है। पुराने दौर में हुसूल इल्म के मराकिज़, मस्जिदें, मंदिरें, मदरसे, खानखाहें, गुरुकुल, आश्रम, या इससे हटकर आप देखें हर गांव में हर जगह पर पीपल का जो पेड़ होता है उसकी पहचान भी यही है कि पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे बैठकर दरसो तदरीस के खिदमत अंजाम देने की तारीख और रिवायात हमारे पास मौजूद है। उसमें ना किसी तरह का जात पात का भेदभाव होता है। आज भी आप सैकड़ों की तादाद में मुसलमान आश्रमों और गुरुकुल से फारिग होते हुए मिलेंगे, तो उसी तरह सैकड़ों की तादाद में मदरसों व मकतबों से फारिग गैर मुस्लिम भी मिलेंगे। मज़कूरा मराकिज़ सिर्फ मजहबी तालीम के लिए ही नहीं बल्कि दुनियावी तालीम के लिए भी अहम माने जाते हैं। कुरान मजीद की एक सूरत का लफ्ज इखरा अपने अंदर लाफानी मानवी खूबियों को समाये हुए है। हुसूल इल्म की खातिर घर के चार दीवारी से निकलकर अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखना चाहिए। आप दिल्ली पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले अपने घर, गली, मोहल्ला वो शहर से निकलना होगा। जब तक आप अपने घर से नहीं निकलेंगे, अपनी गली से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से नहीं निकलेंगे, कभी किसी बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। कोई चीज आप जहां पर हैं वहां पर नहीं आप पहुंचाई जा सकती। हाँ, मेहनतें हैं, मशक्कतें होनी चाहिए, तलाश और जुस्तजू होनी चाहिए। जिस तरीके से लोग खतरा आप को तरसते हैं, उसी तरह से इल्म के खतरों को या छींटों को हम क्या है अगर तरसेंगे तो जाहिर बात है कि जो छींटे हैं वो उससे हजार छींटे पैदा होंगे। इस तरीके से एक जजीरा बनेगा इल्म का। उसी तरह से सबसे पहले अपने अतराफ व अकनाफ के लोगों, अदारों, अंजुमनों, तंजीमों, इल्मी, अदबी, सहाफती व तरबियती मराकिज की जानकारी का होना लाजमी है। इंसान में तलाश और जुस्तजू का मादा जरूर पाया जाता है। ये तमाम इंसानी सरिश्त में मौजूद हैं। आज का दौर इल्म व अदब के साथ तशहीर व इशाअत का दौर है। हर चीज बहुत जल्द फैल जाती है। सोशल मीडिया का दौर है, बहुत जल्द क्या है, और मालूमात भी जितना आसानी से आप दूर दराज तक फैला सकते हैं, और यहाँ तक के ग्रुप की शक्ल में हम तमाम मालूमात को एक दूसरे से बहुत जल्द फैला सकते हैं। मीडिया इस तरह से तेज रफ्तारी से काम कर रहा है कि उसकी रफ्तार और गुफ्तार का अंदाजा लगाना मुश्किल है। साथ ही सोशल मीडिया ने असल मीडिया की पोल खोल कर रख दी है। झूठ मुबालिगा ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। सबसे पहले हम अपने आप की पहचान लाजमी है, फिर अपने मोहल्ले, वो गांव, वो शहर की पहचान होना जरूरी है। वही लोग बेहतर हैं जो अपने इलाके, अपने खित्ते,
और अपने माहौल की पहचान रखते हैं। एक बात आपको बताता चलो कि सबसे ज्यादा कन्नड़ा के अदीब और शोरा को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ध्यान से सुनिए, सबसे ज्यादा कन्नड़ा के अदीब और शोरा को हिंदुस्तान में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। सवाल पैदा होता है कि सिर्फ कन्नड़ा को ही क्यों ज्यादा मिले हैं? कन्नड़ के मुकाबले में और भी ज्यादा जबानें हैं और ज्यादा तादाद में बोलने वाली जबानें भी हैं, मगर कन्नड़ को क्यों ज्यादा मिला? बात दरअसल ये है कि आपको बताता चलूं कि देखिए कि कन्नड़ में मुकामी जबानों अदब को पेश किया जाता है, मुकामी चीजों को मंजर आम पर लाया जाता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ की आबो हवा, यहाँ की फिजा, यहाँ की तहजीब, यहाँ का तमद्दुन, यहाँ का कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशंस, ये तमाम चीजों को मंजर आम पर लाया जाता है। लोक अदब जो है, देखिए उर्दू में आप इर्द गिर्द का माहौल हम जो देख रहे हैं, लोक अदब, जैसे कि कन्नड़ में जो है जो जानपदा गीतें होते हैं, वो जानपदा गीतों में जो रस है, जो हकीकत है, वो उसका मुकाबला दुनिया का कोई दूसरा अदब नहीं कर सकता। हर एक जबान का अपना अपना है। उर्दू जबान में जो गजल की अहमियत है, दुनिया के किसी भी अदब में उसकी वो मुकाबला नहीं कर सकती। हर एक जबान एक अपने फन को पेश करती है और उसका हर जबान, दुनिया की हर जबानें भी अच्छी हैं और उसमें क्या है, ये तमाम चीजें क्या है पाई जाती हैं। लिहाजा देखिए, इल्म एक बहरे बेकरा है, इल्म का हासिल करना हम सब पर फर्ज है। जो जितनी मेहनत तलाश और जुस्तजू करेगा, अल्लाह उसको उतनी इल्म की दौलत से मालामाल करेगा। हमें उसूल इल्म की खातिर वालिदैन, असातिज़ा, अपने इर्द गिर्द मौजूद उम्र रसीदा लोगों और तजुर्बाकार लोगों से इस्तेफादा करना होगा। उसमें वहां का माहौल, मिजाज, तहजीब व तमद्दुन और तर्ज जिंदगी भी, तर्ज माशिरा भी मुतासर करता है। मदरसा, मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वार, आश्रम, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सोसाइटी, दुकान, मैदान, खेत, खलियान, इसके साथ हुसूल इल्म की खातिर चार दीवारी से निकलकर ये तमाम चीजों को देखना होगा। चंद बातें इसके अलावा भी आपके सामने मैं ये बयान कर दूं। अक्सर हम जो गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, शहरों का माहौल बदल रहा है गांव के बनिस्बत। अब हम क्या है, पड़ोस में कौन रहते हैं मालूम नहीं है, बगल वाली गली में कौन रहते हैं मालूम नहीं है, मोहल्ले में कितने लोग मालूम नहीं है। मैं आपको चंद मिसालें देने की कोशिश करूंगा कि आप असातिज़ा हैं, अगर 30-40 साल का तजुर्बा रख रहे हैं, या आपके असातिज़ा वालिदैन, उनका पूछिए। आप 80s में चले जाइए, 70s में चले जाइए, 60s में चले जाइए, जो स्कूल का उस्ताद जो होता था गांव में, उस उस्ताद के पास पूरे गांव के लोगों का डेटा मुकम्मल होता था कि हमारे गांव में इतने घर हैं, इतने लोग हैं, उनके घर में इतने बच्चे हैं जो स्कूल आते हैं, वगैरह वगैरह। ये तमाम डेटा क्या है, स्कूल के असातिज़ा के पास होता था। एक दूसरी चीजें जो है, आज हम जो है खासकर शहरों में जो तब्दीली आ रही है, हम क्या है, स्कूल कब जा रहे हैं, मैं खासकर जनरल बात कर रहा हूं, कभी वोट डालना पड़ा तो स्कूल जा रहे हैं। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूं, आम लोगों की क्या है, जब वोट डालने की जरूरत महसूस हुई तो स्कूल जा रहे हैं। बच्चों को पोलियो ड्रॉप डालना तो स्कूल के पास जा रहे हैं, या और कोई ऑफिशियल काम है, कोई सेंसस का है, कोई एंट्री है, या और किसी तरह के काम है तो स्कूल जा रहे हैं। हम उसी मोहल्ले में रहते हैं, स्कूल के आजू बाजू रहते हैं, एक दो गली आसपास रहते हैं, ना वो स्कूल का पता है,
ना स्कूल के हेडमास्टर साहब का पता है, ना असातिज़ा का पता है, ना और वहाँ का माहौल और ना वहाँ के। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को नहीं देखेंगे तो हमारे अपने माहौल को खुद हम सुधारना होगा। कोई ऊपर से आसमान से फरिश्ता उतर कर आकर के वो माहौल नहीं सुधारेगा। जब तक हम खुद नहीं तब्दील होंगे, बदलाव खुद अपने आप में नहीं लाएंगे, तो किसी तरह की तब्दीली की आप क्या है उम्मीद ना रखिए। तब्दीली जरूरी है। आज जो है बहुत कुछ क्या है, आज का साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। हमारे हाथों में जो चीजें हैं आज उससे क्या है, वो दुनिया को एक तरह से मुट्ठी में बंद कर लिए हैं हमने। देखिए फिर भी चंद बातें देखिए। देखिए इल्म दो तरह के होते हैं। ये इक्तिसाबी इल्म जो हमें किताबों से, असातिज़ा कराम से, मदरसों, स्कूलों, कॉलेजों व यूनिवर्सिटियों से हासिल होता है। जो इल्म किताबों में दर्ज है उसको हम बआसानी रफ्ता रफ्ता हासिल करते हैं, जिसके लिए हमें असातिज़ा की जरूरत महसूस होती है। उसमें हर तरह का इल्म होगा, मजहबी, साइंसी व मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, समाजी, जोग्राफियाई, तारीखी, नुजूमी, अदबी, अखलाकी, फल्कियाती, मौसमियाती वगैरह वगैरह वगैरह। ये है इक्तिसाबी इल्म जो किताबों में दर्ज होता है। जाहिर बात है कि हम जो यहाँ तक पहुंचे हैं वो किताबी इल्म से ही पहुंचे। जाहिर बात है किसी ने PCH किए हैं, D.Ed किए हैं, कोई B.Ed किए हैं, कोई MA किए हैं, कोई PhD किए हैं और कोई बड़े बड़े डिग्रियां लिए हैं। तो ये तमाम जो है किताबों में दर्ज है। और एक इल्म होता है, वो एक इल्म है सीना बसीना। वो इल्म असातिज़ा से नहीं मिलता, अपने वालिदैन, बुजुर्गों और पेशवाओं से हासिल होता है। आपको मालूम होगा घरों में बड़े लोग, बुजुर्ग जैसे कि दादा दादी, नाना नानी हो, या और जो है बड़े जो उम्र रसीदा जो लोग होते हैं, ये लोग जो है ये इल्म सीना बसीना किताबों में दर्ज नहीं होता। इससे पहले मैं बात किया लोक अदब की। लोक अदब का बेशुमार सरमाया किताबों में दर्ज नहीं है। लोक अदब जो है वो सीना बसीना आने वाला इल्म है। मुख्तलिफ हमारे पास जो त्योहार, ईद बकरीद हो, होली हो या दिवाली हो, या हमारे यहाँ जो है जो मुहर्रम जो मनाया जाता था वो हो, या उसके साथ हमारे घरों में जो छोटे मोटे जो तकारीबात होते हैं, जैसे क्या है, जैसे कि शादी ब्याह हो, मेहंदी की रस्म हो, या और क्या है वो दुल्हन का क्या है वो घर लाना हो, ये उसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा हमारे पास जो तकारीबात होती हैं बच्चों के लिए, ये जैसे कि हम उर्दू में जो खतीम अदब पढ़ते हैं उसमें अदब की जो इब्तिदा कहाँ से, तो इब्तिदा वही जो झूले नामे, चक्की नामे, जो बिल्कुल क्या वो हमारी खवातीन जो है वो चक्की पीसते पीसते क्या है वो गीत गाती थी। बच्चे को झूला झुलाते झुलाते क्या है वो गीत गाती थी, ताकि बच्चा क्या है वो सो जाए। वो ये जो है इस तरह के जो तकारीबात जो होती थी, उन तकारीबात में जो इल्म, जो गीत, जो जबान, जो अंदाज, जो उसलूब था वो सीना बसीना आ जाता। ये जनरेशन टू जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल को। अब गांव की एक अनपढ़ गवार लड़की जाहिर बात है कि शहर की पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता, आला तालीम याफ्ता लड़की से बेहतर क्या है वो काम कर लेती है, रसोई की काम कर लेती है या घर के काम कर लेती है। ये अब वो काम जो है ना वो किसी किताब से सीखी है और ना किसी उस्ताद से सीखी। अब वो इल्म जो है उसे उसकी माँ से या उसकी जो बड़े जो हैं उनसे क्या है वो सीना बसीना दाखिल हुआ है। यही चीजें हैं ये भी। और एक चीज जो है देखिए, जिसके लिए इसमें हर तरह का इल्म होगा, मजहबी हो, साइंसी, ये जो है अपने तजुर्बे के बिना पर लोगों के औसाफ और किरदार का पता लगे। बड़े बुजुर्ग लोग जो है देखिए हम देखते हैं
के बड़े क्या है वो जैसे जैसे उनकी उम्र होती है तो आदमी को बआसानी परख लेते हैं, कम से कम इतना तो पता लगा लेते हैं कि ये आदमी कैसा है। सरसरी तौर पर क्या है वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने वो एक बार कहा था कि क्या है आदमी को जब क्या है वो किसी को परखना हो, मालूम नहीं कि अंदर से कैसा है आदमी। हाँ, इतनी बात तो सही है कि अगर वो आदमी सलीके से कपड़े पहनकर है, उसका चाल चलन जाहिरी तौर पर अच्छा नजर आ रहा है, तो आप उसे पहली नजर में अच्छा आदमी तस्वुर करो। पहली नजर में, चाहे वो दूसरी नजर में कुछ भी हो जाए पता नहीं, जो जाहिर है वो दिखाई देगा, बातिन किसे मालूम होगा। तो जाहिर बात है कि ये एक नजरियाती बात है जो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कही थी। वही चीजें हैं, हमें इल्म बहुत ये तमाम चीजों से। हम गांव में रहते हैं, गांव में क्या क्या है, एक छोटा गांव है, जाहिर बात है घर है, और उसके साथ साथ हो सकती है कि एक पोस्ट ऑफिस होगी, एक अस्पताल होगी छोटी, या स्कूल है, या और ये तमाम चीजें हैं। अरे घर से जब बाहर निकले तो हमें अस्पताल नजर आई, पोस्ट ऑफिस नजर आई, या और कोई ऑफिस है, और कोई दफ्तर है, और कोई पंचायत की ऑफिस है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, और हम जनरेशन नई नस्ल को हमें मालूम करना है। उर्दू के असातिज़ा हैं, उर्दू जबान जो है वो कहीं बाहर से आई हुई जबान नहीं है, ये इसी सरजमीन की जबान है, इसी सरजमीन के जमाने। और हमें फख्र है कि वो इसी सरजमीन, खासकर कर्नाटक की सरजमीन के 3 ऐसे मुकामात हैं जहां से उर्दू के इब्तिदाई मराकिज़ के सबूत मिलते हैं। एक गुलबर्गा, दूसरा बीजापुर, तीसरा बीदर। ये पुरानी जो सल्तनतें थी, आदिल शाही सल्तनत बीजापुर में, बीदर में बरीद शाही सल्तनत थी। ये उर्दू के इब्तिदाई मराकिज हैं। और गुलबर्गा में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की क्या है वो मज़ार अक़दस है वहां पर। और वो बुजुर्गाने 3 ही बीजापुर में, मीरान शमसुल शाह हैं, बुरहानुद्दीन जानम हैं, अमीनुद्दीन आला हैं। ये वो बुजुर्गाने 3 हैं जो उर्दू के इब्तिदाई दौर में तसानीफात लिखे हैं, चाहे वो पॉम्पलेट्स की शक्ल में हो, किताबों की शक्ल में हो, जराइद की शक्ल में हो, लोगों को दूर दराज मालूम कराने के लिए। ये दरअसल क्या है, हकीकत है। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को, मौसम को, मिजाज को पहचानना चाहिए, तभी जाकर क्या है ये तमाम चीजें क्या है मालूम होता है। वही चीज क्या है वो दरअसल क्या है, जैसे मैं इक्तिसाबी इल्म की बात किया, और दूसरा पॉइंट जो है वो सीना बसीना दाखिल होने वाला है, बहुत बड़ी चीज है। अक्सर अखलाक, औसाफ, किरदार किताबों में तो पढ़ते हैं, घर का माहौल मुतासर करता है, हमारे तौर तरीके मुतासर करते हैं। सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान देनी चाहिए वो हमारी जबान। मैं यहाँ पर एक हदीस का एक मकतला भी क्या है आपके सामने पेश करता चलूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप मुझे अपनी जबान की जमानत दीजिए, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। दरअसल जबान वो, हम लोगों को मुतासर शक्लो शबाहत से नहीं करते, अपनी जबान से करते, अपनी तहजीब से करते हैं। ये लोग बेहतरीन माहौल है, बस इस माहौल को हम सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आगे चलकर क्या है, आगे चलकर जो है बहुत सारी चीजें क्या है। नासिर काज़मी का एक शेर है कि दरअसल के ये लोग जो है वो जैसे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, उनके मुकाबले में क्या है ये कुछ और तजुर्बा रखते हैं। इनसे उनसे पूछो कभी चेहरे भी पढ़े हैं तुमने, उनसे पूछो कभी चेहरे भी पढ़े हैं तुमने, जो किताबों की किया करते हैं बातें अक्सर। अरे ये कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, इनके पास किताबी इल्म उतना ना हो, मगर तजुर्बा है, जिंदगी का तजुर्बा है, वो चेहरा देखकर बहुत सारी चीजें बयान कर देती हैं। ये हमारे बड़े लोग होते हैं, लिहाजा उनका एहतराम होना चाहिए। और एक चीज देखिए, लगभग अपने इर्द गिर्द जो तालीमी मराकिज होते हैं उनमें मस्जिद, मदरसा, मकतब, कमोबेश हर गाँव मोहल्ला को इलाकों में मस्जिदें होती हैं। उर्दू के असातिज़ा हैं। भाई देखिए, आप जो है हम
आप सब उर्दू की तहरीर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रोजगार जो है, कोई भी जबान रोजगार नहीं दे सकती। आज दीगर जबानों में भी काम करने वाले भी लोग बेरोजगार हैं, सिर्फ उर्दू वाले नहीं। देखिए, ये और चीज है, इल्म, हुसूल इल्म और चीज। न सिर्फ दीन का दर्स मिलता है, बल्कि अखलाक, किरदार साजी का भी काम होता है। यहाँ पर बुराई और गुनाहों से दूर करके एक अच्छे दीनदार, एक अच्छे मुसलमान या इंसान बनने का दर्स दिया जाता है। बच्चों को मदरसों, मस्जिदों और मकतब से हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए। ये वो मराकिज हैं जहां हमारे ईमान की पुख्तगी और हमेशा साबित कदम रहने का दर्स मिलता है। साथ ही एक रूहानी सुकून मिलता है। खल्बो जिगर को एक तरह का चैन हासिल होता है जो आगे हमारे तालीमी सफर को आगे बढ़ाने में माविन साबित होता है। हमारा जो एजुकेशनल जो सफर है, जो हमारी, अब क्या है, इसका जमाना है, एलकेजी का जमाना है, यूकेजी का जमाना है, अब क्या है, अब पहली जमात है, दूसरी जमात है। देखिए, बच्चों के ज़हीनों में उर्दू रस्मुल खत डालना, उनकी नजरों में उर्दू रस्मुल खत, उनकी ये जो है उनके जबान पर, उनके कानों में जो है ये अल्फाज, उसके तलफ़ुज़, ये क्या है। उसके साथ साथ देखिए, एक जो आगे हमारे तालीमी सफर को आगे बढ़ाने में माविन साबित होता है, आजकल ख्वातीन के लिए भी निस्वानी तालीम और तरबियत के भी कई मराकिज़ हैं। अब देखिए, चलिए हम टीचर ही हैं, तो हम गांव की हम कितनी खबर रखते हैं, कितना इल्म रखते हैं। हमारे गांव में कितने घर हैं, हमारे मोहल्ले में कितने घर हैं, हमारी गली में कितने घर हैं, और क्या पढ़े हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे किस स्कूल को जा रहे हैं या नहीं जा रहे, अगर नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे। और दूसरा क्या है, हम क्या है, इब्तिदाई तौर पर उर्दू जबानों अदब को हम क्या है, इस तरह से फरोग दे सकते हैं। देखिए, उर्दू सिर्फ हिंदुस्तानी जबान है, ये मुसलमानों की जबान नहीं है। इसलिए कि तमिलनाडु का जो मुसलमान है उसकी जबान तमिल है, केरला का जो मुसलमान है उसकी जबान मलयालम है। गलत बातें जो हैं वो मुसलमानों की जबान कह करके है। दीगर कई जबानें हैं जो मुसलमान अपने अपने जबान इलाकायत को पेश करती है, मजहब को पेश नहीं कर सकती। जबान की पहचान इलाके से होती है। मसलन ये इलाका, देखिए, ये हिंदुस्तान, ये हमारा प्यारा वतन, जिसके ताल्लुक से अल्लामा इकबाल ने कहा था कि गोदी में खेलती हूँ जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती हूँ जिस सरजमीन में हजारों नदियां खेलती हूँ, उसकी जरखीजियत का क्या मतलब। ये तारीफ है हिंदुस्तान की, ये सरजमीन की नहीं। ये जो है, इस सरजमीन को अल्लामा इकबाल ने एक और बात बयान की थी शेर में, है कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जिधर से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है, और यही सरजमीन सबसे अच्छी सरजमीन है, सबसे खूबसूरत सरजमीन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां से ठंडी हवा महसूस हुई, हदीस का मफहूम है ये, जिसे अल्लामा इकबाल ने शेर के जरिए पेश किया। ये है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में भी कर्नाटक की सरजमीन, ये अपने आप में क्या है, ये वैसे भी आप शुमाल के मुकाबले में जनूब के लोग या सरजमीन जो है बहुत अमन सुकून की सरजमीन है। और हमारा कर्नाटक, उसमें समझ लीजिए कि वो यकीनन जो है, वो कोयम्पू ने जो कहा था कि वो ये शांतिया तोटा, यकीनन उसमें दो राय नहीं, किसी तरह के लिए हर तरह से यहाँ के लोग, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की आबोहवा, यहाँ की फिजा, ये इसकी पहचान होनी चाहिए। और उसके साथ एक और एक देखिए, जैसे ये तमाम चीजों की जानकारी हमें हो, खासकर असातिज़ा को हो, ये अवेयरनेस के जो प्रोग्राम जो होते हैं, कम से कम क्या है, इसलिए कि असातिज़ा को और दीगर भी कई काम है, मगर इसके बावजूद ये काम जो है
गांव में, मोहल्ले में कम पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, लोगों में समझ की कमी है, लोगों में हो सकता है कि कुछ और गुमराही भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई, ऐसा नहीं कि एकदम कोई बना बनाया तैयार होकर आपके सामने आ जाए, नहीं, रफ्ता रफ्ता ही आती है, रफ्ता रफ्ता ही आती है। उर्दू जबान के ताल्लुक से भी यही है कि ये वो जबान के वो अचानक कोई नहीं आ जाएगी आपको, वो रफ्ता रफ्ता आने वाली जबान है। रफ्ता रफ्ता हर चीज क्या है आपको रफ्ता रफ्ता। बुनियादी तालीम मराकज जैसे आंगनवाड़ी, LKG, मराकज, देखिए मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि गांव के लोग अक्सर क्या होते हैं, उनको वो स्कूल कब देखते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, वो कभी वोट डालने के लिए जाना है या पोलियो को ड्रॉप डालने जाना है या कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए जाना है या और कोई सेंसस का काम हो, तब नहीं 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 नहीं, ये गलत है। गांव का हर फर्द का फर्ज ये है कि अपने अतराफ व अकनाफ, अपने इर्द गिर्द के माहौल में जो है, जो दर्सगाहें हैं, जो आमोजिश जो दर्सगाहें हैं, उसमें किस तरह का दर्स मिल रहा है, वहाँ के मीर मुदर्रिस कौन है, वहाँ के असातिज़ा कौन है, वहाँ के कितने रूम हैं, वहाँ के बच्चों की तालीमी काबिलियत क्या है, वहाँ के असातिज़ा की काबिलियत क्या है, वहाँ की SDMC कमेटी में कौन कौन लोग हैं। अक्सर देख सकते हैं कि नाम बराए नाम के बड़े बड़े क्या है कमेटियां होती, मगर पढ़े लिखे लोग कम होती, मगर जानकारी रखने वाले लोग हो, अच्छे लोग हो, गलत सलत काम करने वाले लोग ना हो। देखिए ये तामीरी काम है, कौम का मुस्तकबिल जो है वो इनके हाथ में होता है। ये बच्चों को, इस नस्ल को तैयार करना है, तो हम क्या है, ऐसे कमेटियों में, ऐसे स्कूलों की जानकारी रखें, ऐसी कमेटियों की जानकारी रखें, मस्जिदों की कमेटियां होती हैं, नहीं, और ज्यादा से ज्यादा क्या है वो तालीम याफ्ता हो, इल्म की तरफ राग़िब हो, और उर्दू जबान की अहमियत और इफादियत की बात करें। कोई भी फर्द, मैं दावे के साथ कहता हूं, और हिंदुस्तान का कानून भी क्या है उसकी इजाजत देता है कि इब्तिदाई तालीम मादरी जबान में होनी चाहिए। इब्तिदाई तालीम जो है मादरी जबान में होनी चाहिए, इसलिए कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके कानों में जो अल्फाज पड़े, यही अल्फाज मादरी जबान में। मादरी जबान की अहमियत में बता दूं, वैसे भी तो दुनिया तस्लीम करती है, कुरान मजीद से भी साबित है, सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला खुद बयान करता है कि इस किताब को, कुरान मजीद को हमने अरबी जबान में नाजिल किया। अरबी जबान में नाजिल किया, क्या मतलब क्या है, वहां के जो लोग थे उनकी मादरी जबान अरबी थी, तो बाद में तुम्हें इनकार कहीं कर देंगे कि कौन सी की जबान में आ गया, समझ में नहीं, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी अपनी जबान में, तुम्हारी मादरी जबान में नाजिल किया गया है, ताकि तुम बआसानी समझ सको। मादरी जबान की इतनी अहमियत है, हम सबका फर्ज है कि हम क्या है इस जबान को और फरोग देने में और ये करने में क्या है काम करें। देखिए उसके साथ साथ प्राइमरी सतह के ये आंगनवाड़ी और छोटे छोटे जो सेंटर्स होते हैं, बाकायदा कई ट्रेनिंग सेंटर्स, इसकी जानकारी और इस जानकारी को आम करना, इंफॉर्मेशन को आम करना आज का सबसे अहम तकाजा है, ताकि क्या है जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचे। जो बच्चे इल्म के भूखे हैं, हमारी कौम इल्म की भूखी है, अरे उनकी भूख तभी मिटेगी आप उनसे इल्म से आरास्ता हो, पैरास्ता हो। इन बच्चों को, इस नस्ल को, सर सैयद अहमद खान ने जो मिशन शुरू किया था 1857 का, जो गदर हो चुका, हमारी सल्तनतें चली गई, हुकूमतें चली गई, सब खत्म हो गया, मगर उस हस्ती को मालूम हो गया कि सिर्फ एक चीज है जिसमें हमारी कामयाबी दोबारा हमें मिल सकती, वो है इल्म। आज हमारे चंद मिसालें, चंद बच्चे क्या है बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में आला तालीम याफ्ता हो गई, डॉक्टर भी बन रही, थोड़े बहुत इंजीनियर भी बन रही। अब देखते होंगे आला से आला क्या है, इसमें क्या है फैजियाब हो रही,
تو یہ اس کی شروعات سر سید نے کی تھی. رزلٹ کبھی بھی جلدی نہیں آتے. ایک مشن، ایک سلسلہ ہوتا ہے. یہ سلسلہ رفتہ برفتہ ہوتا ہے. ہمارا مقصد ہے یہ 40 50 60 70 سال کی جو زندگی ہے، آپ فرض کیجئے کہ کسی کی زندگی 70 سال ہے، ابتدائی 15 سال 20 سال نکال لیجئے تو آخر کے 10 سال نکال لیجئے تو بچے 30 سال. ان 30 سالوں میں جو محنت کرے گا وہی محنت سب سے. خرد کو غلامی سے آزاد کر، اقبال نے دعا مانگی تھی. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. پیر کہتے ہیں بوڑھے کو. خرد پرانے طریقے سے دیکھتے ہوں گے آپ جو عمر رسیدہ بوڑھے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ اس سے تبدیلی آتی نہیں. ان میں جو نوجوانوں میں آ سکتی ان میں وہ تبدیلی نہیں آتی. کی نہیں آ سکتے، وہ دیکھیں نہیں، وہ چیز اس سے واقف نہیں. ٹی وی ہے نہ تو گھر میں آنا نہیں، ٹی وی موبائل نہ تو. اب ایسا کس کے پاس ہے جس کے پاس موبائل نہیں ہے، کس کے پاس ہے جو ٹی وی نہیں ہے. بہت دیکھیے کوئی چیز جو ہے وہ اچھی بری نہیں، بلکہ آپ اس کا استعمال کیسا کریں گے اس کے پر منحصر ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ٹیکنالوجی جو ہے وہ انسان کی سہولت کے لیے ہوتی ہے. آپ ایک چھوٹی گاڑی سے لے کر فین سے لے کر آپ کو موبائل فون سے لے کر ہر ایک ٹیکنالوجی جو ہے وہ انسان کے کام آسان کرتی ہے، وقت بچاتی ہے. یہ دراصل کیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بیسک تعلیم ہوگی، ابتدائی تعلیم. ابتدائی تعلیم کے بعد فوراً آپ کیا ہے، جیسے کہ کیا ہے، آپ کو 1 سے لے کر 7 تک پرائمری اسکول کا ہوگا. بچے کا ذہن کس طرف مائل ہے، بچے کا ذہن یا سائنس کی طرف ہے، یا کامرس کی طرف ہے، یا آرٹس کی طرف ہے، یا کوئی ایڈمنسٹریٹو کوئی کام کر سکتا ہے. یہ اس کی طرف کیا ہے، یہ دراصل قوموں کی خدمتیں سنوارنے کا یہ جو ہے وہ اساتذہ کیا ہے، ان کی خدمتیں، ان کے مستقبل، دراصل بچوں کے مستقبل کیا، ملک اور قوم کا مستقبل. وہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کوئی اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے. ہر ایک آدمی، چاہے گاؤں کا ہو شہر کا ہو، ہر ایک فرد اہمیت کا حامل ہے. ہر ایک کیا ہے اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے وہ ملک کے لیے، سوسائٹی کے لیے دیتا ہے. اسے آپ ایک کسان ہو، ایک مزدور ہو، ایک دکاندار ہو، کوئی بھی ہو، ایک فوجی ہو، ایک ڈاکٹر ہو، ایک انجینئر ہو، ایک ٹیچر ہو، اپنا اپنا کردار کیا ہے نبھاتا ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سرکاری و غیر سرکاری اسکول ہوتے ہیں، اس کی جانکاری. مثلا ہر ایک کے اوپر یہ بات عائد ہوتی ہے کہ یہاں کتنے سرکاری اسکول ہیں، کتنے غیر سرکاری اسکول ہیں، اور بچوں کی تعداد کتنی ہے. میرے والد پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے. وہ جہاں پرانا دور تھا ان کا، جو میں وہی بات کر رہا ہوں 60s کی، تو جہاں جس گاؤں میں وہ ڈیوٹی کرے تو وہاں کے گاؤں کا پورا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے. فلاں کا بیٹا فلاں، یہ وہاں گھر ہے ان کا، یہ مسجد کے قریب، یہ فلاں پوسٹ آفس کے قریب، یہ وغیرہ 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 تمام ڈیٹا کیا ہے یہ. اور دوسرا کیا ہے، دیکھیے اگر یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں تو ایک لاہ عمل تیار کرنے میں آسانی ہوتی ہے. لاہ عمل تیار کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے. دیکھیے تبدیلی میں نے بتایا کہ خود اپنے آپ میں آنا ہے. اب کوئی منو سلوا کیا ہے وہ آسمان سے اترنے والا نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کا جینا مرنا خود ہم کیا ہے فیصلہ کریں. زندگی کے سلیقے اور طریقے اور کام کس طرح سے کرنا ہے، قوم کو کس طرح سے آگے لے جانا ہے. یہ کام پاکی صفائی، نیٹنس. ہم کیا ہے ظاہر بات ہے کہ ہم پاک صاف رہ کے اچھے کپڑے پہن لیں، نہیں. انسپریشن جو ہے آپ بچوں میں، گاؤں میں، محلے میں یہ چیز پہنچنا چاہیے. یہ دراصل کیا ہے ہماری ایک طرح سے آموزش یہی چیز ہے. 10ویں جماعت کے جو نتائج، اس کے بعد بچے سائنس کی طرف، کامرس کی طرف. اپنے ارد گرد کتنے اسکول ہیں، کتنے تعلیمی مراکز ہیں، ٹریننگ کے سینٹرز ہیں،
कंप्यूटर के सेंटर्स हैं, और उसके साथ साथ क्या है, और अपने इर्द गिर्द जो हैं बच्चे कहाँ जा रहे हैं। जाहिर बात है कि आप स्कूल के असातिज़ा हैं तो आपके पास डेटा बहुत कुछ होता है। इससे हटकर भी बहुत सारी चीजें क्या है कि उसका डेटा भी होना है और सही राह पर लाना है, सही राह पर लाना। और यहाँ तक कि बच्चों को अगर स्कूल तक चंद दिन आप कोशिश करके सही राह में ला ले तो उसके बाद अपने आप में वो सुधर जाएंगे और वो दूसरों को कहलाने की कोशिश करेंगे। ये दरअसल हकीकत है। उसके बाद आप आला तालीम की तरफ आएंगे, पीयूसी है 2 साल का कोर्स है। उसके बाद बच्चों का ध्यान किस तरफ है, किसी का मेडिकल साइंस को जाना, कोई इंजीनियरिंग को जाना, कोई कॉमर्स की तरफ जाना, बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ जाना, और किसी का आर्ट्स की तरफ है, कोई और, ये तमाम चीजें। उसके बाद यूनिवर्सिटी। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए अक्सर वो बेशतर क्या होता है कि हमारे गाँव में, खासकर शहरों में, एक बात ये होती है कि शहरों में जो जितने कॉलेज, जितने स्कूल होते हैं उसका पता ही नहीं चलता, लोगों को मालूमात ही नहीं रहती। ये एक यूनिवर्सिटी है, मैं कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में हूँ। तो कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ये पूरी रियासत की यूनिवर्सिटी है, पूरी कर्नाटक रियासत की वाहिद फासिलाती तालीम की यूनिवर्सिटी है। हमारे यहाँ जो कोर्सेस हैं इसका इल्म कितने लोगों को है? साइंस में है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, कॉमर्स है, एमबीए है, आर्ट्स के तमाम, सोशल साइंसेस के हैं, लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़ और तो इंग्लिश तो है, उसके साथ साथ जो है अब कन्नड़ इंग्लिश के साथ साथ क्या है, उर्दू है, तेलुगु है और कई हैं। इस तरह की जानकारी क्या है होना है और जानकारी फैलना है, और उसके जो नतायज सामने आएंगे और जो हम जो बच्चों में ये अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है, अपने इर्द गिर्द जो जहां पर हम क्या है, जो तालीमी मराकज़ हैं, सबसे पहले उससे क्या है, आप अपने पहले गांव को, अपने गली मोहल्ले को आबाद करेंगे, गली की तालीम, जो तालीमी मराकज़ हैं उसे आबाद करेंगे, तो बाद में और बहुत सारी चीजें ठीक इस तरह से जो है। और उसके बाद डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटियां, ये तमाम क्या है। देखिए एक बात ये भी इल्म होना है, रफ्ता रफ्ता क़वानीन बदलते रहते हैं, क़वानीन बदलते रहते हैं और क़वानीन में जो है वो ज़रूरत के हिसाब से उसमें बहुत सारी तब्दीलियां होती रहती हैं। यही चीज़ें आज बैक वक्त 2 डिग्रियां करने की इजाज़त भी है, यूजीसी उसे मंजूरी दे चुकी है। और ये तमाम जानकारी कितने लोगों को है, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। लिहाजा मुझे बहुत खुशी महसूस है, मैं खुशी का इजहार कर रहा हूँ कि आज मुझे सुनहरा मौका देकर इस टीम ने, CWC टीम ने, खासकर हमारे तबरेज़ साहब हैं, मलिक साहब हैं, ये तमाम जो इंतज़ाम किए, और खुसूसन रामनगर, मधुगिरी और टुमकुर के जो DDP साहिबान हैं और ECO, CRP असातिज़ा हैं, अस्मा मैडम हैं, ये तमाम असातिज़ा का फर्दन मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि चंद मेरे कलिमात जो हैं वो आपको गोशेगुज़ार करने का मौका मिला। आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर। मेरे प्यारे असातिज़ा इकराम, साथियों और इस सेशन के मेहमानान खुसूसी डॉक्टर नसरुल्लाह खान साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस सेशन में जिसका उन्वान है हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ आमोज़िश के मौक़े तलाश करना। साथियों, जब मैंने इस उन्वान को देखा तो मुझे थोड़ा शुबा पैदा हुआ कि इस पर किस तरह बात कर सकते हैं, या कौन सा मवाद इस पर हासिल हो सकता है, या क्या कर सकते हैं, इस तरह का कुछ शुबा मेरे दिल में आया। लेकिन देखिए, जब मैंने मोहतरम डॉक्टर नसरुल्लाह खान सर को सुना तो मेरी समझ में आया कि ये सच है कि तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़िए तो फरिश्ते वज़ू करें।
اب جب میں نے یہ سارے سیشن کے بعد فیڈ بیک سیشن کو دیکھا تو مجھے لگا کہ بہت سارے اساتذہ کرام کافی ایکسائٹیڈ ہوں گے اس پر تبصرہ کرنے کے لیے اور اس پر فیڈ بیک دینے کے لیے، اور میں نے آپ کی خاموشی دیکھی تو شاید مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کی اہم باتوں کا احاطہ کر لوں آپ کے سامنے۔ تو ساتھیوں، میں ایک مرتبہ ابھی تک ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ان سارے نکات کا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک مختصر سا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے لفظ اقرا سے اپنی بات کی آغاز کی۔ آپ نے کہا کہ پڑھنا دین اسلام میں کس طرح اور کتنا ضروری ہے اور اس کو قائم کرنا کتنا اہم ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اساتذہ پر بات کی اور کہا کہ ماضی کے اور حال کے اساتذہ اکرام کے مزاج پر آپ نے روشنی ڈالی اور بتایا کہ ماضی کے اساتذہ اکرام کا کس طرح کون سا نظریہ کیا تھا، کس طرح ان کا پرسپیکٹیو تھا، وہ کس طرح سے جب ایک کسی مدرسے میں کام کرتے تھے تو کس طرح اپنے ایریا کے سارے گھروں کا کی خبر، سارے چیزوں کی خبر رکھتے تھے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اطراف و اکناف میں کس طرح سیکھا جا سکتا ہے، یعنی کسی بھی بچے کا فیملی بیک گراؤنڈ کس طرح چیک کیا جا سکتا ہے، یا پھر ان کے انڈیویجول اسٹڈی کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزوں پر آپ نے بہت بہترین انداز میں بات کی اور اس کے علاوہ بتائے کہ حال میں کس طرح کے اساتذہ اکرام ہیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک کمرہ جماعت میں رہتے ہیں اور ہمارا صرف اور صرف یہی شیوا ہے کہ ہم صرف اپنے کمرے کے اندر ہمارے بچوں کو دیکھتے ہیں اور بچوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ماضی میں اساتذہ اکرام کے مزاج کچھ الگ رہے تھے اور اس چیزوں کو اپنانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اس پر آپ نے بات کی۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اکتسابی علم کتنا ضروری ہے۔ یہ اکتسابی علم یعنی کتابوں کا علم، کتابی علم جو حاصل کیا جا سکتا ہے مطالعہ وغیرہ سے، اور اس کو عمل کرنا کتنا ضروری ہے، اس پر آپ نے بہت بہترین بات کی۔ تو تمام اساتذہ اکرام کی جانب سے تینوں ڈائٹس، تمکور ڈائٹ، مدھوگیری اور رام نگرہ ڈائٹ کی جانب سے میں ڈاکٹر نصر اللہ خان سر، صدر شعبہ اردو، کرناٹکا اسٹیٹ اوپن یونیورسٹی میسور، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے بہت ہی بہترین عنوان پر کافی اچھی طریقے سے آپ نے آج ہمارے اساتذہ کو اس پر روشنی ڈالی اور آپ نے بات کی۔ اور اس کے علاوہ رام نگرہ ڈیٹ کے محترمہ اسما میڈم اور جناب پربھو سوامی سر، آپ دونوں نے بہترین آغاز کیا اس سیشن کا، تو میں آپ دونوں کا تینوں ڈائٹس کی جانب سے اور تمام CWC ٹیم کی جانب سے اور میں اپنی انفرادی طور پر اور تمام اساتذہ اکرام کی جانب سے میں آپ دونوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اسی طرح میں سید تبریز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اور اس کے علاوہ اساتذہ اکرام، ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ CWC ٹیم کا جو یہ ایک انیشیشن ہے خاص طور سے اردو اساتذہ اکرام کے لیے کہ اردو اسکولز اور اردو مدارس کے معیار کو بڑھانے کے لیے، کوالٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے آپ نے اس طرح سے جو موٹیویشنل سیشنز رکھے ہیں، یہ کافی بہترین کانسیپٹ ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک پروفیسر ہو، چاہے اسسٹنٹ پروفیسر ہوں یا لیکچررز ہوں یا اسکالرز ہوں، ان کے خیالات کو پرائمری اساتذہ تک پہنچانے کے لیے ایک برج کو جو قائم کیا ہے، یہ پل جو باندھا ہے انہوں نے، یہ کافی اہم ہے اور بہت کارگر ثابت ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا تمام اساتذہ اکرام سے میری گزارش ہے کہ اس طرح کے موٹیویشن سیشنز کو آپ سنجیدگی سے لیں، آپ سنیں، آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ صرف یہ آرگنائز کیا جا رہا ہے اردو مدارس اور اردو سکولز کے لیے، اردو ٹیچرز کے لیے، تو تمام سے گزارش ہے کہ اس کو اپریشیشن کے طور پر لیں اور اپنے آپ میں اس کو انکلکیٹ کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔
इसी के साथ साथ मैं CWC टीम का तीनों डायट्स की जानिब से, तमाम उर्दू असातिज़ा की जानिब से और वो सारे स्टाफ की जानिब से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और सबसे अहम जो है, आप तमाम असातिज़ा इकराम जितने भी आज जुड़े हुए हैं या बाद में जो ऑफलाइन आप यूट्यूब पर जाकर देखने वाले, सुनने वाले हैं, आप तमाम का भी मैं जो है तहे दिल से इस सेशन में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बेहद शुक्रिया, मुझे अब इतना बात करने का मौका मिला, आप तमाम के साथ जुड़ने का मौका मिला। आप तमाम का शुक्र अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। बेहद शुक्रिया।